Welcome to Brain Tonica. Your tutoring video will start shortly. For better learning experience, use headphones. Watch the complete video in one go. Hello everyone, welcome back. So in the last lecture we discussed about the four similarity criteria. Now in today's lecture we have to solve the questions based on that criteria. Okay, so students, we are starting the questions directly from NCERT exercise 6.3. okay, the questions are gonna be very important for your 10th board examination. Okay, see, the first question I am taking, in this figure, AD and CE are the altitudes of this triangle ABC. Okay, altitude means the line drawn through any vertex perpendicular to the opposite base. Okay, and we are given that in the triangle ABC, AD and CE, the two altitudes are intersecting at point P, and we have to show that in the first part we have to show triangle AEP is similar to triangle CDP, and then we have four parts in the question. Okay, so students, first of all we will write given. What we have given here, we have given that the AD is altitude, so obviously AD is perpendicular to BC, that means angle D is 90 degree. Okay, and one more thing which is given to us is CE is perpendicular to AB, right? Now what we want to prove, students, in the first part we want to prove that the triangle AEP is similar to triangle CDP. Now students, just observe the two triangles AEP and CDP. Okay, let me highlight the two triangles first. This is the triangle AEP, this is the triangle AEP, and the another triangle is just above this triangle AEP, the triangle CDP. Clear, students? Now in triangle AEP and in triangle CDP, let me use the different ink color for denoting the triangle CDP. Okay, if you carefully observe, students, you have one angle equal angle P, because they both are actually vertically opposite angles. They are actually this angle and this angle. Okay, these angles are vertically opposite, so angle P are equal to angle P. Okay, and here angle E is right angle and here angle D is right angle. Why? Because we are given AD and CE are altitudes. Okay, so by angle similarity criteria we can conclude that the triangles are similar. Okay, so the third angle of the triangle AP, that is angle A, PAE, okay, will be equal to the triangle, will be equal to the angle DCP. Okay, this angle A will be equal to this angle C after applying the similarity, because they will be the corresponding parts of similar triangle. Okay, students, how we will write? We will write properly here. Firstly we will write the name of the triangle AEP, and the second triangle is triangle CDP. First of all, we have angle APE is equal to angle CPD. They both are vertically opposite angles. Okay, and the second thing is, students, angle AEP and angle CDP, both are 90 degree. It is given in the question that they are altitudes. AD and CE are the altitudes. Okay, so students, by angle similarity criteria we can conclude that the triangles are similar by angle similarity. By angle similarity criteria we can conclude that the triangle AEP is similar to the triangle CDP. क्लियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर लिया है, ट्रायंगल एईपी ट्रायंगल सीडीपी के सिमिलर है.
स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखिए, अब हमको प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीडी, और एबीडी को किसके सिमिलर प्रूफ करना है? एबीडी को सिमिलर प्रूफ करना है आपको सीबीई के। एबीडी स्टूडेंट्स, अगर आप एबीडी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ठीक है, अगर इसमें येलो वाले येलो वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, वेट अ मिनट, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है ये है ट्रायंगल एबीडी, ये है ट्रायंगल एबीडी। जब मैंने ट्रायंगल एबीडी को शेड किया है तो आप ट्रायंगल एबीडी पर ही एक अपना ऑब्जर्वेशन रखिएगा, है ना, ऑब्जर्व कीजिएगा ट्रायंगल एबीडी को, जिसको कि मैंने शेड किया है अभी। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा जो ट्रायंगल है एबीडी के बाद, वो ट्रायंगल इस बार हमारे पास है ट्रायंगल सीबीई, ट्रायंगल सीबीई, ओके, ट्रायंगल सीबीई। अब स्टूडेंट्स, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबीई को जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को एक चीज ऑब्जर्व हो जानी चाहिए कि एंगल भी दोनों में ही कॉमन एंगल है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबीई, इन दोनों ही ट्रायंगल्स में सीबीई जो एंगल है वो कॉमन है। क्लियर? तो एक तो हमको एंगल भी कॉमन मिल गया दोनों में, ये वाला जो एंगल है वो दोनों ही ट्रायंगल्स का एक कॉमन एंगल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंगल अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो ट्रायंगल एबीडी का एंगल डी 90 डिग्री है, देख सकते हैं आप, और ट्रायंगल सीबीई का एंगल ई 90 डिग्री है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबीई में एक तो एंगल बी कॉमन है, एक तो एंगल बी कॉमन है, और एक चीज जो हम कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स वो ये कि जो एंगल डी है वो एंगल ई के इक्वल है और दोनों ही 90 डिग्री है। तो अगेन बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूव हो गए, ठीक है स्टूडेंट। मैं यही सेकंड पार्ट का आंसर भी लिख देता हूं स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड पार्ट का आंसर, इन ट्रायंगल एबीडी and triangle CBE. Firstly, we observe angle ABD and angle CBE. Angle ABD and angle CBE. They are common angle. They are common. Right, and the next thing is angle ADB is equal to angle CEB. They both are right angle given. So students, using this we can conclude that by angle similarity criteria these triangles are also similar. Now students, for proving the rest four parts, the rest two parts, you can use the same concept, triangle AEP एंड ट्रायंगल एडीबी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल एडीबी के अंदर, ठीक है, पहले तो एंगल ए कॉमन है, ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल एडीबी में एंगल ए कॉमन है, और जो एंगल ई है ट्रायंगल एईपी का वो एंगल डी के इक्वल है ट्रायंगल एडीबी के। तो अगेन बाय एंगल क्राइटेरिया, और ऐसे ही स्टूडेंट फोर्थ पार्ट भी आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। In this question student, we have to prove that triangle PQS is similar to triangle TQR, and what we are given? We are given one thing, that is QR is to QS is equal to QT is to PR. Okay. चलिए students, one more thing we are given, angle 1 is equal to angle 2. स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिए जो गिवन डेटा होता है उसी में कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। सबसे पहले अपन गिवन डेटा को लिख देते हैं। आपको डेटा गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। स्टूडेंट्स बताइए फिगर देखकर, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है तो इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमने 9th क्लास में पढ़ा है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे स्टूडेंट्स तो हम लिखेंगे since angle 1 is equals to angle 2 given, since we are given that angle 1 is equals to angle 2, the sides opposite to these angles are also equal. So in a triangle PQR, in triangle PQR हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? हम कहेंगे कि क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है इसलिए जो साइड PR होगी, एंगल 1 के अपोजिट साइड PR, ट्राइंगल PQR को ऑब्जर्व कीजिए, एंगल 2 के अपोजिट साइड PQ, PR भी PQ के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अच्छा, और क्या गिवन है स्टूडेंट्स? हमको ये गिवन है कि QR अपॉन QS जो है वो QT अपॉन PR के इक्वल है। स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करें इस चीज को कि हमको प्रूव करना है ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल TQR को सिमिलर। आप एक बार PQS को देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल PQS है, ये है हमारा ट्राइंगल PQS। इस ट्राइंगल PQS को बड़े वाले ट्राइंगल TQR के सिमिलर प्रूफ करना है। एक चीज तो आपने ऑब्जर्व कर ही ली होगी कि ये एंगल Q जो है वो दोनों में कॉमन है, ये एंगल Q है कॉमन। अच्छा, और कोई एंगल इनमें नहीं दे रखे क्योंकि एंगल 2 जो है वो ट्राइंगल TQR का का नहीं है, ठीक है, वो PQR का एंगल है। तो अब एंगल 1 तो कॉमन मिल गया स्टूडेंट्स हमको। अब हम क्या करें? तो मैंने जैसा कहा कि गिवन को देखो, गिवन में क्या लिखा है? QR अपॉन QS QT अपॉन PR के इक्वल है, जो कि यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। अगर मैं PT को PQ के इक्वल PR को अगर मैं PQ के इक्वल लिख दूं तो ठीक है। आप देखिए एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ट्राइंगल TQR की जो साइड QR है, ये QR, ठीक है, QR, इसके करस्पॉन्ड साइड है QS, इसके करस्पॉन्ड साइड है QS, ट्राइंगल PQS की। तो QR अपॉन QS ये रेशो मिल गया, किसके इक्वल? QT, ये QT अपॉन QP होना चाहिए था, PQ होना चाहिए मतलब, है ना, बट हमारे को होना तो PQ चाहिए था, बट हमारे को जो डेटा इसने गिवन है उसमें PR लिख रखा है, तो हम PR को PQ के इक्वल लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये शो किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस यूजिंग इक्वेशन 1 हम PR को यहां PQ लिख देंगे। तो QR अपॉन QS किसके इक्वल आ गया? QT अपॉन PQ के इक्वल आ गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ गया, और इनके इंक्लूडेड एंगल जो है इनका वो तो एंगल Q या एंगल 1 कुछ भी कह लो आप, कॉमन है, ठीक है। तो जब करस्पॉन्डिंग साइड्स, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और इंक्लूडेड एंगल भी सेम होता है, तो हम कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं? हम करते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई। तो स्टूडेंट्स अब हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको लिखना है केवल स्टूडेंट्स, आप यही लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं यही लिख देता हूं। इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है? इसका सॉल्यूशन होने वाला है, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम स्टूडेंट्स? ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल TQR एंड ट्राइंगल PQS। देखिए आप, TQR बड़ा वाला ट्राइंगल, PQS छोटा वाला ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ QR अपॉन QS, the ratio of QR upon QS is equal to the ratio of QT upon PQ। Proved, अभी हमने इसको प्रूव करके दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो एंगल TQR is equal to angle PQS, the common angle of the two triangles। So students, by side angle side similarity criteria,
we can conclude now that the triangle TQR is actually similar to the triangle PQS. Clear? So in this way we will answer that. Now students, see the next question. In this question we are given the triangle ABC and triangle AMP are the two right triangles, okay, right angles at B and M. We have to prove this result. Now it's actually very simple one, but an important one. This question can come in 2 mark or 3 mark for exam, in exam, okay. चलिए ABC और AMP को ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स. ABC, ये ABC, ये ABC, ठीक है. और अब आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स AMP को, और आप ही बताइए कौन सा एंगल जो है इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है. AMP, ये AMP ट्राइंगल हो गया. आप सब लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा स्टूडेंट्स कि एंगल ए दोनों में है, कॉमन है. तो एक तो हमको एंगल ए कॉमन मिल गया, और ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी ट्राइंगल एएमपी के एंगल एम के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बने. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इसके बाद हमको लिखना है एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ठीक है, चलिए लिख देते हैं फटाफट. इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी. Okay, first of all we will write angle A is common, so we can write completely angle BAC is equal to angle PAM या MAP, common angle, and angle ABC is equal to angle AMP, both are 90 degree. It is given in the question. So here we apply the angle angle similarity criteria. By angle angle similarity criteria we can conclude that the triangle ABC is actually similar to the triangle AMP. Students, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे दो पार्ट्स होते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्स्ट पार्ट से रिलेट होता हुआ ही सेकंड पार्ट होता है. मतलब जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है उसको यूज करते हुए हम सेकंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं. अब स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो. तो देखिए, अगर जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो AC के करस्पॉन्ड साइड्स क्या है, AP. तो बाय CPST हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट द रेशो ऑफ AC is to AP is actually equal to the ratio of BC to the MP, and that's our second part. Okay, तो हम यहां लिख सकते हैं रीजन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ऐसे लिख दीजिए ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ये आपने इसके आगे रीजन दे दिया. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर एक्चुअली प्रोपोर्शनल. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स हम सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर चुके हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टू सॉल्व. ओके, दिस क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT and many times they ask these questions, and students I would say you that if you solve these all questions of 6.3, actually you are ready for approaching a new question. Okay, so you have to solve all questions. Okay, चलिए CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of the triangle ABC and triangle EFG, as you can see in the figure students. बस इस important चीज ये देखनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि आपको, क्योंकि CD बाइसेक्टर गिवन है तो यहाँ पर जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो. और ऐसे यहाँ पर एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन ये चीज लिख लेते हैं. गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गिवन दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. चलिए, we are given triangle ABC is similar to triangle FEG. Okay, one more thing is given to us, that triangle ABC is similar to the triangle FEG. Okay, now students, in the first part we have to prove that the ratio of CD
to GH is equal to the ratio of AC to the FG। स्टूडेंट्स ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले ऑब्जर्व कीजिए कि ये कौन से दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये जो साइड्स हैं ये कौन से ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। देखिए आप CD ये लाइन है, ये CD है जो कि बाइसेक्टर है एंगल C का, और GH ये है जो कि बाइसेक्टर है किसका, एंगल G का। CD अपॉन GH, और ये AC है और ये FG है। आप ही बताइए स्टूडेंट्स कौन से दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स बन सकती है। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो से हमको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो अब आप फोकस कीजिए स्टूडेंट्स ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH को सिमिलर करने पे। अब आप सोचिए स्टूडेंट्स कैसे ये ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं बाय यूजिंग द गिवन डेटा। डेटा में हमको ये गिवन है कि ABC ट्रायंगल जो है वो FEG के सिमिलर है। देखिए जब ट्रायंगल ABC FEG के सिमिलर है जैसा कि हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल ABC जो है वो एंगल FEG के इक्वल है, और सिमिलरली एंगल BAC जो है वो एंगल EFG के इक्वल है। तो हम BAC को यूज करेंगे। देखिए यहां पर मैं BAC को यूज करने जा रहा हूं, तो एंगल BAC जो है BAC वो इक्वल होगा एंगल EFG के, एंगल EFG के, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक एंगल तो हमको ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स जब ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है तो ये जो कंप्लीट एंगल BCA है, ये जो एंगल BCA है ये इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा EGF। अच्छा स्टूडेंट्स अगर एंगल टू एंगल 4 के इक्वल आ जाए तो बात बन जाए। ठीक है, और ये बात बनी हुई है एक्चुअली आपको दोनों एंगल्स के हाफ ऑफ करने हैं, क्योंकि जब ये एंगल C मतलब एंगल BCA, ये पूरा एंगल BCA जब एंगल EGF के इक्वल है तो इनके हाफ ऑफ भी इक्वल होंगे। तो आप क्या कीजिए स्टूडेंट्स दोनों तरफ हाफ कर दीजिए, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली दो हाफ में डिवाइड करेंगे, इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हाफ ऑफ एंगल BCA हाफ ऑफ एंगल EGF के इक्वल आ गया। यहां से हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल 1 या आप इसको मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, या चाहे तो आप इसको एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF लिख देता हूं, HGF, या एक ही बात है आप इसको एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख लीजिएगा डायरेक्टली। तो स्टूडेंट्स बाय अप्लाइंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया हमारा काम। ठीक है, हमको यही तो करना था। चलिए तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इन ट्रायंगल ACD एंड another triangle is FGH. Okay, first of all students you will write that angle DAC is equal to angle HFG. Reason is because angle BAC is equal to angle EFG and they are the same angles. Okay, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं proved. And the next is angle 2 is equal to angle 4, or this angle DCA is equal to angle HGF. Angle DCA is equal to angle HGF. So here also by angle similarity criteria we can conclude that the triangle ACD is similar to triangle FGH. By angle similarity, the triangle ACD is similar to triangle FGH. Now once the triangles are similar students, the corresponding side should be in the same ratio. Okay, so we will write that the side AC upon FG is gonna equal to the ratio of CD is to GH, and
that we had to prove. CD is to GH. Clear, students? Now the second part. In the second part, we have to prove the triangle DCB is similar to triangle HGE. Now observe the two triangles, students, DCB and HGE. Can they be proved similar directly based on the same concept? See, here angle B and angle E will be equal because they are the corresponding angles of the triangle ABC and triangle FAG, which we were given the similar. Okay, and half of angle BCA is equals to half of angle EGF. That means angle 1 is equals to angle 3 because angle 1 is the half of angle BCA and angle 3 is the half of angle EGF. So students, again by angle similarity criteria you can prove the second part. And the third part is same that we already proved in first part. In first part we showed that the triangle in the first part only we showed the triangle ACD is similar to triangle FGH. Okay, and just reorder. Okay, ACD को DCA ऑर्डर में लिख दिया और HG जो हमने FGH था उसको HGF लिख दिया. तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट को भी आप जैसे अपन ने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करके दिखाया है कि ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल FGH सिमिलर हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये प्रूफ करा है. इसी को रीऑर्डर कर देंगे तो ये थर्ड पार्ट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is the next question. In this question, students, we are given D is a point on the side BC of the triangle ABC such that angle ADC and angle BAC are equal. Okay, angle ADC is 90 degree and angle BAC is also 90 degree. We have to prove a result. Students, remember the figure of this question because you will be having number of questions based on this figure. Also, this figure is gonna be used for the proving of Pythagoras theorem, which we will prove in the end. Okay, so this figure is very important. Okay, the concept is same, but you will have a number of questions based on this particular figure. Okay, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, ABC एक राइट एंगुलर ट्राइंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री है और इस A से जो कि राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इस वाले वर्टेक्स से आपने हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है. ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनस BC होगा क्योंकि एंगल ही 90 डिग्री है. इस पॉइंट A से आपने हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है. देखिए अब यहाँ पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं. पहले अपन इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर CB इंटू CD के इक्वल है. तो स्टूडेंट्स देखिए, CA हमको कौन से ट्राइंगल से मिलेगा? CA हमको ट्राइंगल ABC से मिल सकता है और CB हमको ट्राइंगल ABC से मिल सकता है, CB, बट CD हमको मिलेगा ट्राइंगल ACD से. ट्राइंगल ACD से हमको मिलेगा CD. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आपको क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यूज करना है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग ऑब्जर्व कर पाए होंगे कि कौन से दो ट्राइंगल्स अब हमको लेने हैं. देखिए, एक तो मैं ट्राइंगल लूंगा स्टूडेंट्स ये ACD और एक मैं लूंगा ट्राइंगल ABC कंप्लीट ट्राइंगल. जब मैं ACD और ABC बोल रहा हूं तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि दोनों में ही एंगल C कॉमन है. जब मैं बोल रहा हूं एक बार ट्राइंगल ACD और एक बार मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल ABC, तो दोनों में ही एंगल C जो है वो क्या है? कॉमन है. तो एंगल C तो आपको मिल गया कॉमन. ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर ही पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि एंगल ABC, ट्राइंगल ABC का एंगल A 90 डिग्री है, वहीं ट्राइंगल ACD का एंगल D 90 डिग्री है. ठीक है, तो अब हमको बस इसको लिखना है स्टूडेंट्स. इन ए ट्राइंगल ACD एंड triangle ABC. Okay, but students, order we have to keep in mind the corresponding part. Okay, if I ask you what is the corresponding part of C, so it should be C only in the another triangle. And if I ask you what is the corresponding part of this D in the next triangle, so it should be A, because angle D is 90 degree and their angle A is 90 degree, and obviously the remaining will be B.
So in triangle ACD and triangle BCA, if you observe students, angle ACD is equal to angle BCA. They are the common angles. And secondly, students, we will say that angle ADC is equal to angle BAC. Both are right angle. Both are right angle given. So students, you will use the same criteria, angle similarity criteria, and you can conclude that the triangle ACD is similar to the triangle BCA. And when the triangles are similar, their corresponding sides should be in the same ratio. So the ratio of AC, the ratio of this side AC to this BC is gonna exactly same as the ratio of this side CD to this CA. So writing CA as AC only, I will be getting the required result. AC square is equal to BC into CD, और CB into CD एक ही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो AC स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है BC इंटू CD के, वो इक्वल है BC इंटू CD के। हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ABD, ये आपके लिए स्टूडेंट्स ये सोचना है आपको कि ट्रायंगल ABD, क्या ये ट्रायंगल ABD सिमिलर होना चाहिए, ट्रायंगल ABD भी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल CBA के? बताइए स्टूडेंट्स, क्या ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBA भी सिमिलर होने चाहिए? यूजिंग द सेम लॉजिक देखिए आप, एंगल B कॉमन आ रहा है और एंगल D और एंगल A दोनों 90-90 डिग्री है। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा और यहां से इस पे भी बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अगर आप यहां से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा? AB अपॉन BC किसके इक्वल आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, AD अपॉन AB के। तो यहां से रिजल्ट बनेगा कि जो AB का स्क्वायर है, जो AB का स्क्वायर है वो इक्वल बनेगा AD इंटू, AB का जो स्क्वायर है वो इक्वल बनेगा AD इंटू BC के। ठीक है स्टूडेंट्स, AB का स्क्वायर बनेगा AD इंटू BC के। अच्छा एक और चीज स्टूडेंट्स, एक और नया क्वेश्चन इस पे बन सकता है जो कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में सिमिलरिटी अप्लाई करने से बनेगा। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको, और पाइथागोरस थ्योरम में हम इस रिजल्ट को भी यूज करने वाले हैं। देखिए यहां पर तो ये रिजल्ट बनाता AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू AD। ठीक है, एक और चीज स्टूडेंट्स, अगर आप ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका जो ये एंगल B है ना, ये इसके एंगल A के इक्वल आएगा। अगर आप ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को अगर ऑब्जर्व करें तो ये एंगल भी इस एंगल A के इक्वल आएगा। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ऐसा क्यों आएगा? देखिए इसको समझने के दो तरीके हैं। एक तो आप दोनों को सेम ट्रायंगल ABC के सिमिलर करके फिर दोनों में सिमिलरिटी लगा दो, बट उससे भी बेटर स्टूडेंट्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कि क्यों ये एंगल इक्वल आएंगे, एक बार मैं इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूं स्टूडेंट्स। देखिए लेट अस से ये वाला एंगल 1 है, ठीक है, और ये वाला एंगल 2 है। लेट अस से ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। स्टूडेंट्स वन थिंग, जस्ट टेल मी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 should it be 90 degree or not? Angle 1 plus angle 2 should it be 90 degree? Why? Because ABD is the right angular triangle. If I apply the angle sum property in the right triangle ABD, angle 1 plus angle 2 plus angle D should be 180 degree. So from there I can conclude that angle 1 plus angle 2 should be 90 degree. ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी 90 डिग्री होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल 2 और एंगल 3 मिलके ही तो एंगल A बन रहा है जो कि राइट एंगल है। अच्छा अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अब सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट से आप एंगल 2 और एंगल 4 को भी तो इक्वल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप
एक बार कहें कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है, और एक बार आप कहें कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है, और जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल 4 ये वाला एंगल 2 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या बना सकते हैं, यहां से हम बना सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व कीजिएगा, ट्रायंगल ABD किसके सिमिलर होगा। देखो जब आपने ABD में A लिया है तो यहां पर C लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ABD में A मतलब एंगल 2, C और A C के करस्पॉन्ड है, और तो ये क्या बनेगा, ABD किसके सिमिलर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सिमिलर हो जाएगा C A D के। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड भी कई बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। इससे क्या मिलता है आपको, इससे मिलता है आपको AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन CD एंड BD अपॉन AC। ओके, सो BD अपॉन AC लिख देते हैं, सॉरी BD अपॉन AD, BD अपॉन AD एंड AD अपॉन CD, AD अपॉन CD। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि AD स्क्वायर BD इंटू CD के प्रूव होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस पे आपको फोकस होना चाहिए इस एक फिगर से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन अब और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Learned awesome concepts? Now time to test your learning. Try the lesson and quiz to evaluate your learning. Make sure you score 80% or more in the quiz before you jump to the next video.